Hi friends, today we are going to study the process of implantation. Let's understand first what implantation is. Implantation is the first stage of gestation, which when is successful, the woman is said to be pregnant. Alright, implantation में क्या होता है? Implantation में जो ये structure है, this is known as blastocyst, ये invade होती है to the endometrial lining of the uterus. Alright, before watching the video of implantation, I will suggest you to go through my previous videos, which is fertilization and process of blastulation, so that it will be easy for you people to understand the process of implantation. Okay, let's quickly review the structure which is present here. This whole structure is known as uterus. Okay, the uterus contains the anterior wall and posterior wall. The implantation usually occurs either on the anterior wall or posterior wall, but near the funds. Alright. On the interior wall, I had highlighted some very important layers here, which are basically present on the posterior wall too. So, interior wall जो है, इसमें कुछ layers present होते हैं. The outermost layer, which I have highlighted with a black marker here, this is known as perimetrium. After that, the middle layer, which I have highlighted with the blue marker here, this is known as myometrium, which is made up of muscles. And the inner layer, which I have highlighted with the green marker, this is known as endometrium. The endometrium has its own two layers. These layers are known as stratum basalis. This green line here, this is known as stratum basalis, and stratum functionalis, the layer which I have highlighted with the red dots. Alright, the implantation usually occurs with the endometrium of the uterus. Okay, तो basically क्या होता है यहाँ पे, ये जो blastocyst है, alright, ये पहुंच जाती है यूट्रस में ऑन मोस्ट प्रोबेबली 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. The process of implantation usually occurs in 4 stages or 4 steps. The step number first is apposition. The second step is addition. Third and fourth step is penetration and invasion. So basically, the process of implantation occurs in 4 stages. The first stage is apposition, second stage is addition, third and fourth stage is penetration and invasion. All right. जब ये ब्लास्ट यूट्रस में एंट्री लेती है, तो ये जो ब्लास्ट है, इसमें two types of cell layers present होती है. The cells which are arranged itself on the periphery, these are known as trophoblast cells. And the cells which are inside, these are known as embryoblast cells. Now what's happening here? It contains 2 poles. This blastocyst contains 2 poles, embryonic pole and amembryonic pole. जो implantation है, ये usually start होती है embryonic pole से. Okay. ये जो embryoblast cells होती है, ये कुछ signals send करती है, और by the help of these signals, ये जो trophoblast cells होती है, ये अपने आप को differentiate करती है 2 layers में. क्या हुआ यहाँ पे, जो embryoblast cells है, इन्होंने कुछ सिग्नल्स सेंड किए, और इन सिग्नल्स की हेल्प की वजह से क्या हुआ, इन सिग्नल्स की वजह से ये जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है कि डिफरेंशिएट हुई 2 लेयर्स में. द रेड लाइन हियर, द रेड सेल लाइन हियर इज नोन एज sensual trophoblast. Sensual trophoblast cells, and the inner layer, which is previously known as trophoblast cells, now it's known as cytotrophoblast
ब्लास्ट सेल्स। ओके, ये जो सिंचियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर होती है, इनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है आपस में मिक्सअप हुआ होता है। एंड ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है कंपैक्ट लेयर होती है, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो मिक्सअप नहीं होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है मिक्सअप नहीं हुआ होता है। सो क्या होता है यहाँ पे, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है इन्होंने सिग्नल्स ट्रांसमिट किया, जिसकी वजह से जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ये दो लेयर्स में डिफरेंशिएट होगी। नंबर वन लेयर इज द रेड लाइट हियर, दिस इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, एंड द कंपैक्ट इनर कंपैक्ट लेयर हियर इज इट इज नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ओके, यहाँ पे ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इसपे कुछ माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं, एंड इन द सेम वे यहाँ पे जो सिंचियोट्रोब्लास्ट सेल्स होती है यहाँ पे भी क्या होते हैं, कुछ माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जो माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे, दीज आर नोन एज पिनापोड्स। ऑलराइट, अब ये जो यूट्रस होता है एक्चुअली ये सिक्रेटरी फेज में होता है, ठीक। इसमें यूट्राइन मिल्क प्रेजेंट होता है, और वो जो यूट्राइन मिल्क होता है उसमें क्या होता है, दैट्स रिच इन ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड रिच, सिक्रीशन सिक्रीट कर रहा होता है यूट्रस। और जो पिनापोड्स होते हैं ये इसी सिक्रेशन को एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, इस यूट्राइन मिल्क को ये एब्जॉर्व कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग में पिनापोड्स प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूट्रिशन कलेक्ट कर रहा होता है फॉर दिस ब्लास्टोमेयर। ऑलराइट, तो जो पहला स्टेज है दैट्स एपोजिशन। अब एपोजिशन स्टेज में क्या होता है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये साइड बाय साइड लाई करती है, ये बिल्कुल अपोजिट में लाई करती है इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के। और यहां पे क्या हो रहा होता है, ये जो पिनापोड्स होते हैं ये न्यूट्रिशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, किसके लिए, ब्लास्टोसिस्ट के लिए। एंड नाउ द सेकंड स्टेज इज एडिशन। अब एपोजिशन के बाद क्या होता है, एपोजिशन के बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है, दैट्स नोन एज एडिशन। एज द नेम सेज, दिस इज व्हाट इज एडिशन। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एडहियर होती है, यानी कि अटैच होती है किसके साथ, एंडोमेट्रियल लाइन के साथ। विद द हेल्प ऑफ, कैसे अटैच होती है, इट अटैचेस विद द हेल्प ऑफ सम मॉलिक्यूल्स व्हिच इज सिक्रेटेड बाय बोथ ऑफ द लाइनिंग्स, लाइक सिंचियोट्रोब्लास्ट सेल्स जो है कुछ एडहियर मॉलिक्यूल्स सिक्रेट करते हैं, इन द सेम वे एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है कुछ एडहियर मॉलिक्यूल्स सिक्रेट करते हैं। दीस एडहियर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज लाइक सिलेक्टिन, कैडेरिन एंड इंटेग्रिन, जिनकी हेल्प की वजह से जो होता है ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ अटैच हो जाती है। सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग हियर, तो क्या हो रहा होता है एडिशन में, एडिशन में जो ये सिंचियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है ये कुछ एडहियरेंस मॉलिक्यूल्स सिक्रेट करती है। इन द सेम वे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है ये भी कुछ एडहियरेंस मॉलिक्यूल्स सिक्रेट करती है। दिस एडहियरेंस मॉलिक्यूल्स लाइक सिलेक्टिन, कैडेरिन एंड इंटेग्रिन, ये क्या करते हैं, इस ब्लास्टोसिस्ट को एडहियर करवाते हैं किसके साथ, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेज क्या था, एपोजिशन। सेकेंड स्टेज था एडिशन, थर्ड स्टेज पेनिट्रेशन, फोर्थ स्टेज इन्वेजन। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये जो सिंचियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है यहां पे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, दीज आर नोन एज स्ट्रोमल सेल्स। अब क्या होता है, पेनिट्रेशन में क्या होता है, जो सिंचियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है ये कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती है, और जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती है, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं इन स्ट्रोमल सेल्स को पेनिट्रेट कर रही होती है, इन स्ट्रोमल सेल्स को हटा रही होती है यहां से एंडोमेट्रियल लाइनिंग से, सो दैट ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इन्वेड हो सके किसमें, इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। अब पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन में क्या होता है, ये जो सिंचियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होती है ये सिक्रीट करती है कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प की वजह से क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इनपे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है नोन एज स्ट्रोमल सेल्स। ये इन स्ट्रोमल सेल्स को पेनिट्रेट कर रही होती है, ब्रेक डाउन कर रही होती है, सो दैट ये जो होल स्ट्रक्चर है ये इन्वेड हो सके, ये धस सके किसमें, एंडोमेट्रियल लाइनिंग
में, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग में ये जिस लेयर में कंपैक्ट हो जाती है, कंपैक्टली जो इन्वेट होती है, दैट्स नोन एज स्ट्राटम फंक्शनलिस। कभी भी जो ये इन्वेजन है स्ट्राटम बेसालिस तक नहीं पहुंचता है। अगर ये स्ट्राटम बेसालिस तक पहुंचेगा, इट विल लीड सम कॉम्प्लिकेशंस इन द वुमन, एंड दीज कॉम्प्लिकेशंस वी विल रीड दीज कॉम्प्लिकेशंस इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, तो क्या हो रहा होता है यहाँ पे, जो सिंसियोट्रोब्लास्ट सेल्स होती है, ये कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्रिएट कर रही होती है, जिनकी वजह से स्ट्रोमल सेल जो होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, सो दैट ये जो होल स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट, ये किसमें इन्वेड हो सके, एंडोमेट्रियल के स्ट्राटम फंक्शनलिस लेयर। ऑलराइट, लेट अस ज़ूम इन दिस होल स्ट्रक्चर हियर। यहाँ पे जो कंप्लीट होल स्ट्रक्चर है ये इन्वेड हो गया एंडोमेट्रियल के स्ट्राटम फंक्शनलिस लेयर में। As we know, this blastomere contains the outer cell bond, it's known as cytotrophoblast. Inner cell mass, embryoblast, and syncytioblast. अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये कंप्लीटली इन्वेट होता है एंडोमेट्रियल के स्ट्राटम फंक्शनलिस लेयर में, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियल लेयर है, यहाँ पे एक फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है, फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है, और ये इस स्ट्रक्चर को कंपैक्ट कर देता है। ऑलराइट, जो सिंसियोट्रोब्लास्ट सेल्स, ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, यहाँ पे कुछ मैटरनल कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। बाय द डेवलपमेंटल प्रोसेस ये क्या कर रहा होता है, यहाँ पे काम, ये सिंसियोट्रोब्लास्ट सेल्स है, ये इन मैटरनल कैपिलरीज को अपने अंदर इन्वेट कर लेता है। जैसे ये मैटरनल कैपिलरीज सिंसियोट्रोब्लास्ट सेल्स के साथ अटैच हो जाती है, इन्वेट हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, जो मैटरनल ब्लड है वो ड्रेन होता है स्ट्रक्चर में। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो होल स्ट्रक्चर जो है एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर इन्वेट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइब्रिन क्लॉट बन गया, जिसने इस सेल को, इस होल स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, कंपैक्ट कर दिया। अब जो सिंसियोट्रोब्लास्ट सेल्स है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है, इनमें कुछ मैटरनल कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, एंड जो सिंसियोट्रोब्लास्ट सेल्स है इन मैटरनल कैपिलरीज को अपने अंदर इन्वेट करती है, सो दैट जो मैटरनल ब्लड है वो फ्लो हो सके इस ब्लास्टोमेयर के अंदर। अब जैसे ही ये मैटरनल कैपिलरीज इन्वेट होती है, ये जो जैसे ये ब्लड मैटरनल ब्लड जो होता है ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, किसमें, सिंसियोट्रोब्लास्ट सेल्स या साइटोट्रोप, ये ब्लास्टोमेयर में, यहाँ पे कुछ स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, एंड दीज स्पेसेस आर नोन एज लेक्यूनेस। और ये स्पेसेस होते हैं, बहुत सारे स्पेसेस क्रिएट हो जाती है, और ये स्पेसेस मर्ज होके कुछ नेटवर्क बनाती हैं, दीज नेटवर्क्स आर नोन एज लेक्यूनर नेटवर्क। और जो लेक्यूनर नेटवर्क है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। सो ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है ये भी खुद को डिफरेंशिएट कर देती है, जैसे ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट हुई थी सिंसियोट्रोब्लास्ट सेल्स में एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स में, ऐसे जो इनर सेल मास है यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स जो होती है ये भी खुद को डिफरेंशिएट कर देती है, ये बनाती है बाइलैमिनर डिस्क, बाइलैमिनर डिस्क क्रिएट कर देती है। दिस रेड वन इज नोन एज एपिब्लास्ट, और इस एपिब्लास्ट से जो लेटर ऑन किसकी फॉर्मेशन होती है,
एक्टोडर्म की। बाइलैमिनेट एसिड क्रिएट करती है एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। ये जो हाइपोब्लास्ट है, इससे लेटर ऑन किसकी डेवलपमेंट होती है? एक्टोडर्म की। ओके, ये जो एपिब्लास्ट है कवर करती है इस साइटोट्रोफोब्लास्ट को और एक कैविटी बनाती है। दिस कैविटी हियर नोन एज एमनियोटिक सैक। एंड ये जो हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट क्या, यहाँ पे इस साइटोट्रोफोब्लास्ट को कवर करती है पेरिफेरली, सेम एज एपिब्लास्ट, और ये कैविटी क्रिएट करती है। दिस इज नोन एज योग सैक। ऑलराइट गाइस, ये जो इम्प्लांटेशन है जिसमें ये होल स्ट्रक्चर, ये होल ब्लास्ट सिस्टम इन्वेट होती है, कंप्लीटली इन्वेट होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, दिस इज नोन एज इंटरस्टिशियल implantation. And implantation, it completes most probably 10th or 11th day after fertilization. गाइस, आपको ये आज का लेक्चर जो है इम्प्लांटेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होगा डिसिडुआ, फॉर्मेशन ऑफ डिसिडुआ। और तब तक आप वीडियो में बने रहे, चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, वो भी इंस्पायर हो के वो भी कुछ नया सीखें और आपको भी जो है नई नई नॉलेज डे बाय डे मिलती रहे। और टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।